وہاں انٹرویو میں بیٹیوں سے پوچھا جاتا تھا یہ بتا ارے تیری باپ کی عزت پیاری نہ لگی تو نے اپنے باپ کو چھوڑ کر کے چلی آئی ہو اپنی ماں کو چھوڑ کر کے چلی آئی ہو اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اپنا دھرم مذہب اسلام چھوڑ کر کے چلی آئی ہو آخر ریزن کیا ہے تو بیٹیاں انٹرویو میں کھڑے ہو کر کے کہتی ہے میں حمایت نہیں کر رہا ہوں میں بیٹیوں کے سپورٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹیاں جا رہی ہے وہ اچھا کر رہی ہے جو بیٹیاں دھرم بدل رہی ہے وہ اچھا کر رہی ہے ارے اس بیٹیوں پہ لعنت ہو جن بیٹیوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گی لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آخر کیا ریزن ہے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کو آسان کر دو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمتیں لے کر کے پیدا ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ جب اس بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور جب پیدا ہوتی ہے تو رحمتیں لے کر کے پیدا ہوتی ہے اور جب تک باپ کے گھر میں رہتی ہے نا تب تک اللہ اس بیٹی کے صدقے میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اس بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ تمام تر برکتوں کو لے کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے یہ افسوس ہے اور افسوس اس بات کی ہے کہ ایک بیٹی ہمارے گھر سے برکت لے کر کے چلی جائے گی باپ سے جدا ہو جائے گی بھائی سے جدا ہو جائے گی اپنے گھر والوں سے جدا ہو جائے گی اس بات کی افسوس ہے چونکہ آج اس زمانے میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ ذرا سا 2-4 سال پیچھے کا معائنہ کریں گے پیچھے کے ہسٹری اور تاریخ کو پڑھیں گے تو ایک باپ جب بیٹی کو رخصت کرتا تھا نا تو گھنٹوں ایک باپ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کے روتا تھا گھنٹوں روتا تھا لیکن آج اس ماڈرن زمانے میں بات کروں تو ایک ہمارے گھر سے بیٹی کی رخصت ہوتی ہے باپ سے جدائی ہوتی ہے ماں سے جدا ہوتی ہے لیکن ہم عیاشیوں میں کھوئے رہتے ہیں آرکیسٹرا اور بینڈ پارٹی میں لگے رہتے ہیں ہمیں آج افسوس نہیں ہے کہ ہمارے گھر سے بیٹی ودا ہو رہی ہے پچھلا دور تھا کہ ایک باپ کو بہت زیادہ افسوس ماں کو بہت زیادہ افسوس ہوا کرتی تھی ماں گھنٹوں اپنے بیٹی کو کلیجے سے لگا کر کے روتی تھی باپ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر کے روتا تھا اس لیے کہ میں نے بیٹی کو بڑی ناز و نیاز کے ساتھ پالا ہے ایک باپ سوچتا تھا میں نے 18-20 سال تک بیٹی کو پال کر کے جوان کر دیا ہے آج تک اپنی بیٹی کو کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے میں نے نہیں بھیجا باپ سوچتا ہے میں خود مزدوری کر لیا ہوں بیٹی کو جوان کیا ہوں اچھا پرورش کیا ہوں اب جس گھر میں اس کو میں شادی کرا رہا ہوں باپ اس فکر میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس گھر میں میری بیٹی کو عزت سے روٹیاں ملے گی یا نہیں ملے گی میری بیٹی جس گھر میں جائے گی اس گھر میں پتہ نہیں ہماری بیٹی کی قدر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی جس گھر میں ہماری بیٹی جائے گی پتہ نہیں وہاں میری بیٹی کو جس طریقے سے میں نے 18-20 سال تک اپنی لاڈلی کو پیار دیا ہے وہاں پیار ملے گا یا نہیں ملے گا وہاں میری بیٹی کو محبت ملے گی یا نہیں ملے گی صاحب یہ افسوس ہوا کرتا تھا لیکن آج ہم نے بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں ہمیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے کہ بیٹی جدا ہو رہی ہے گھر سے رحمتیں جا رہی ہے ہاں جب تک ہمارے گھر میں رہتی تھی اللہ اس کے صدقے میں کئی بلاؤں کو ٹالتا تھا کتنی رحمتیں نازل ہمارے گھروں میں کرتا تھا لیکن آج وہ بیٹی جا رہی ہے تو ہم آرکیسٹرا کے دھن میں مست ہو چکے ہیں ہم ڈی جے کے دھن میں مست ہو چکے ہیں ہم صاحب اپنی شادیوں کو دنیا کے دکھاوے میں رہ چکے ہیں ہمیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے جانتے ہیں بیٹی سے میرے آقا نے کتنا پیار کیا ہے آقا فرماتے ہیں جب بھی میں سفر میں نکلتا تھا تو سب سے آخر میں اپنی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتا تھا تاکہ دنیا والے کو پتا چل جائے دنیا والوں یہ بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے اگر وہی باپ عزت سے اس کی شادی کرا دیتا ہے جوان کر کے تو جس گھر میں جاتی ہے وہاں کے لیے رحمت ہو جاتی ہے اور جب وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو اللہ اسی کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے ہاں بیٹیوں کا مقام میرے آقا نے فرمایا آقا ارشاد فرماتے ہیں جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پیدا کیا اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کیا اور اس کی شادی اچھے گھرانے میں کرا دیا آقا فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے آقا جنت کی ضمانت دے رہے ہیں بیٹیوں کے باپ کو اب بن بیٹی کا باپ تو ٹینشن میں ہوگا کہ صاحب بیٹیوں کے باپ کو مصطفیٰ نے جنتی کہا ہے اور وہ بھی 3 بیٹیوں کے باپ کو جنتی کہا ہے تو 2 بیٹی کے باپ صحابی رسول کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو 2 ہی بیٹی ہے آقا فرماتے ہیں میرے دیوانے ٹینشن کیوں لیتا ہے اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو جا 2 ہی بیٹی کو اچھے ڈھنگ سے پرورش کر اور اچھے گھرانے میں رشتہ کرا دے تیرا بھی ٹھکانہ جنت ہو جائے گا
صحابی خوش ہو گئے نا، تو ایک صحابی رسول اور کھڑے ہو گئے جن کے پاس ایک ہی بیٹی تھی. کہا یا رسول اللہ آپ نے تو 3 بیٹیوں کے باپ کو جنتی کہہ دیا، 2 بیٹیوں کے باپ کو جنتی کہہ دیا. یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے، کیا میرے بارے میں آپ کا کچھ خیال نہیں ہے؟ اللہ ہمارے بارے میں کچھ ہمارے مرنے کے بعد یا پھر مرنے سے پہلے ہمارے لیے کوئی صلہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری دیوانے ٹینشن کیوں لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمتوں کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. جا اگر ایک ہی بیٹی ہے اس کو پرورش اچھے ڈھنگ سے کرنا اور جوانی کے دہلیز پہ جب قدم رکھ دے اچھے گھرانے میں رشتہ کرا دینا، تیرا بھی ٹھکانہ جنت ہو جائے گا. ہاں صاحب یہ آقا فرما رہے ہیں 3 بیٹیوں کے باپ نے جس نے پرورش کیا، اچھے ڈھنگ سے پرورش کیا، اس کے لیے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. میرے آقا 2 بیٹیوں کے باپ کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، 1 بیٹی کے باپ کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہماری بیٹیوں کی پرورش اسلام کے کلچر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں صاحب معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج صاحب میں بات کروں نا تو ہمارے معاشرے کی حالات ہو گئی ہے، ہمارے گھروں سے اسلام ختم ہو چکا ہے، ہماری سوسائٹی سے مصطفیٰ کا فرمان ختم ہو چکا ہے. ہاں ہمارے علاقے سے اللہ اور اس کی رسول کی محبتیں ختم ہو چکی ہے. اللہ درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجودی بالکرم والیہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس تھوڑی دیر برداشت کر لے، 10 منٹ انشاءاللہ اذان ہو گئی ہے. میں عرض کر رہا تھا اللہ کی محبوب فرماتے ہیں بیٹیوں کے باپ کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. مقدر والا ہوتا ہے وہ باپ جس نے بیٹی کو پرورش کر کے شادی کرتا ہے. اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں اب وہ باپ تو خوش ہوتا ہوگا حدیث پاک کو سن کر کے، اب وہ سوچتا ہوگا کیا کوئی شرابی باپ کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو کیا اس کے بارے میں بھی مصطفیٰ نے کہا جنت ہے؟ گنہگار باپ ہو اور وہ بیٹی کو پیدا کر رہا ہے، اچھے ڈھنگ سے پرورش کر کے اچھے گھرانے میں رشتہ کرا دیا، کیا وہ گنہگار بھی جنت میں جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں یہ بیٹیاں جنت کی ضمانت ہوتی ہے، آپ کو جنت دلائے گی. لیکن آپ اس حدیث پاک کو بھول جاتے ہیں. ایک جگہ فرمایا گیا کہ یہ بیٹیاں آپ کو جنت بھی دلا سکتی ہے اور یہی بیٹیاں آپ کو جہنم بھی دلا سکتی ہے. ہاں فرمایا گیا، ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ بیٹیاں، ایک بیٹی 4 مردوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. ایک بیٹی یعنی ایک خاتون 4 مردوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے. آپ جشن مناؤ، خوشی مناؤ. حدیث پاک سن کر کے آقا نے فرمایا جس باپ نے بیٹی کو پیدا کیا اور اس کا پرورش اچھے ڈھنگ سے کیا، اچھے گھرانے میں شادی کرا دیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. لیکن آؤ صاحب آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. آپ آئے دن دیکھ رہے ہوں گے نا کتنی بیٹیاں، ہمارے قوم کی بیٹیاں، ہمارے گھروں میں پرورش پانے والی بیٹیاں، مذہب اسلام میں پیدا ہونے والی بیٹیاں، ہاں کہیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، کبھی جان دے رہی ہے، ہاں صاحب کبھی اپنا دھرم ایکسچینج کر لے رہی ہے، کبھی مرتد ہو جا رہی ہے. آپ نے اس کا ریزن نہیں سمجھا صاحب. آج ہم سوسائٹی اور سماج کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر سے مذہب اسلام ختم ہو چکا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ختم ہو چکا ہے، خدا کا فرمان ختم ہو چکا ہے. آئے دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں نکاح کو آسان کر دو، نکاح کو سستا کر دو تاکہ دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے. اگر ہماری قوم کی بیٹیاں جا رہی ہے، اگر ہمارے گھروں سے بیٹیاں نکل کر کے جا رہی ہے، مذہب اسلام کو بیٹیاں چھوڑ رہی ہے، تو کیا آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ آپ سے پوچھا جائے گا بتا کیا کمی تھی کہ آپ کی بیٹی آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی ہے؟ آپ آئے دن سوشل میڈیا میں دیکھتے ہوں گے نہ جانے کہاں کی بیٹیاں اسلام چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، اپنا دھرم چینج کر دے رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. ہاں صاحب یہ بھی میں نے ویڈیو دیکھا تھا، ایک صاحب انٹرویو میں ایک لڑکی سے پوچھا جا رہا تھا اے بیٹی یہ بتا، بیٹی تو باپ کی شان ہوا کرتی ہے، بیٹی باپ کی عزت ہوا کرتی ہے، سنبھالنا آپ کا کام ہے صاحب، یہ بیٹیاں رحمتیں ہوتی ہے، اسے بچا کر کے رکھنا آپ کی امانت ہے، آپ کا کام ہے. لیکن انٹرویو میں پوچھا گیا تھا ارے بیٹی یہ بتا اپنا دھرم کیوں بدل دی ہے، کیوں تو مرتد ہو گئی ہے، اپنا مذہب کیوں چھوڑ کر کے چلی آئی ہے، کیا تجھے اسلام اچھا نہیں لگا ہے، کیا مصطفیٰ کا فرمان تجھے اچھا نہیں لگا ہے؟ ہاں کائنات میں مذہب اسلام سے اچھا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اے دنیا والو ان الدین عند اللہ الاسلام، کائنات میں بے شمار مذاہب
मजाहिब है, लेकिन सबसे पसंदीदा और सबसे खूबसूरत कोई मजहब है तो उसी मजहब को मजहब इस्लाम कहा जाता है। अल्लाह ने करम किया कि हमें और आपको मजहब इस्लाम में पैदा किया है। वहां इंटरव्यू में बेटियों से पूछा जाता था, ये बता अरे तेरी बाप की इज्जत प्यारी ना लगी, तूने अपने बाप को छोड़ करके चली आई हो, अपनी माँ को छोड़ करके चली आई हो, और बड़ी बात तो ये है कि अपना धर्म मजहब इस्लाम छोड़ करके चली आई हो। आखिर रीजन क्या है? तो बेटियां इंटरव्यू में खड़े होकर के कहती है, मैं हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं बेटियों के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बेटियां जा रही है वो अच्छा कर रही है, जो बेटियां धर्म बदल रही है वो अच्छा कर रही है। अरे उस बेटियों पे लानत हो जिन बेटियों ने मजहब इस्लाम को छोड़ करके जा रही है, वो जहन्नम का ईंधन बनेगी। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं आखिर क्या रीजन है। मुस्तफा ने फरमाया निकाह को आसान कर दो। आओ साहिब बेटियों की जुबानी सुनते हैं। वो बेटियां इंटरव्यू में खड़े होकर के कहती है, अरे मैं धर्म ना बदलूं तो क्या करूं, मैं अपना मजहब ना छोड़ूं तो क्या करूं। अरे मेरे मजहब वालों ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया था, शादी को इतना मुश्किल कर दिया था कि मेरे बाप की गुर्बत की वजह से कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मेरे बाप की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा था। हाँ, मेरे बाप की गरीबी की वजह से कोई मेरे लिए रिश्ते लेकर के नहीं आ रहा था। इंटरव्यू में खड़े होकर के कहती है, अरे मैं धर्म ना बदलूं तो क्या करूं, मेरी उम्र 25 साल हो गई है, आज तक कोई रिश्ता मेरे बाप के कदमों तक नहीं आया है। हमारी उम्र 30 साल हो गई है, आज तक कोई मेरी शादी का पैगाम लेकर के नहीं आया है। आज तक मेरी उम्र 35 साल हो गई है, आज तक कोई रिश्ता लेकर के नहीं आ रहा है। वो बेटियां कहती है, अरे मैं धर्म ना बदलूं तो क्या करूं, इसलिए कि मेरे धर्म वालों ने शादी को इतना मुश्किल कर दिया था। कोई बरादरी देखने की वजह से मुश्किल किया था, कोई माल देखने की वजह से मुश्किल किया था, हाँ कोई हुस्न देखने की वजह से मुश्किल किया था। वो बेटियां कहती है, ये गैर मजहब का लड़का है, मुझे बगैर जहेज का कबूल करने के लिए तैयार हो गया। अब मैं कहना चाहूंगा मुस्तफा ने यही रीजन है कि फरमाया है, अगर आज बेटियां जा रही है तो मुस्तफा की बातों पे हमारी अमल नहीं है। हाँ, अगर आज बेटियां हमारे घरों से निकल रही है तो आज मुस्तफा की सुन्नत पे अमल नहीं है। आज बेटियां इस्लाम छोड़ रही है तो हमारा मजहब इस्लाम पे अमल नहीं रह चुका है। आज भी मैं कहना चाहूंगा, अगर चाहते हैं कि मजहब इस्लाम आपका पामाल ना हो, आपका मजहब बच जाए, हाँ आपकी इज्जत बच जाए, आपकी अमानत बच जाए, ये बेटियां रहमत होती है, बचाना आपका काम है। मुस्तफा के फरमान के मुताबिक आप शादी को आसान कर दो, और अगर अल्लाह ने माल दिया है तो किसी गरीब बच्ची के पास चले जाना और कहना, अरे अरे गरीब बच्ची का बाप टेंशन ना ले, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, मैं मुफ्त में तेरी बेटी से शादी कराने के लिए आ गया हूँ। हाँ आजा इधर, बेटियां इतनी खुश हो जाएगी, गरीब इतने खुश हो जाएंगे कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें मजहब इस्लाम में पैदा किया है, जहाँ गरीबों को जीने का हक दिया जाता है वैसा ही अमीरों का भी जीने का हक दिया जाता है। फिर आप कोशिश करें निकाह को आसान करें। अगर और बुराइयां बढ़ रही है ना, तो फिर ये सोच लीजिए कि हमारी बात नबी की बातों पर हमारी अमल नहीं है, मुस्तफा के फरमान पे हम नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सुन्नतों में कमी रह गई है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो फिर आप कोशिश करें कि हम मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। साहिब ये बेटियां जानते हैं, फरमाया गया यही बेटियां है साहिब आपको जन्नत भी दिलाएगी अगर इज्जत के साथ परवरिश करेंगे। आज साहिब हमारा सोसाइटी और समाज में आप देखते होंगे कितनी हमारे कौम की बेटियां है साहिब, कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रही है, आप कोई फेसबुक पे डांस कर रही है। आप देखते हैं कि शादी ब्याह का सिस्टम देखें साहिब, आज हमारे घरों में शादियां हो तो इतने बेहयाई वाले तराने बजते हैं, इतने बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं कि साहिब बजाने वाले को शर्म नहीं आती है लेकिन सुनने वाले को शर्म आ जाती है। ये साहिब कहां चला गया इस्लाम? ये तो निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, इस निकाह से मुस्तफा को राजी करने की चीज है, खुदा को राजी करने की चीज है। लेकिन इसी शादी में हमने साहिब गाने इतने बेहयाई वाले बजाया है कि साहिब सुनने वाले को शर्म आती है, बजाने वाले को शर्म नहीं आती है। याद कर ले मुस्तफा के दिल पे क्या गुजरती होगी, मेरे महबूब को कितनी तकलीफ होती होगी। जिस मुस्तफा ने निकाह को आसान करने का जरिया बताया था, जिस निकाह को बरकत वाली चीज बताया था, मुस्तफा ने कहा था यह निकाह मेरी सुन्नत है। अगर उसकी सुन्नतों में हम गाने बजा करके मुस्तफा को तकलीफ दे रहे हैं, मुस्तफा को कभी डीजे बजा करके तकलीफ दे रहे हैं, हाँ कभी अपने मन के मुताबिक शादियां करके पैगंबर को नाराज कर रहे हैं, साहिब आना मुस्तफा ने भी 4 बेटियों को रुखसत किया था। सबसे प्यारी बेटी, लाडली बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह एक गरीब अली के साथ करके दुनिया वाले को पैगाम दिया था, ए दुनिया वालों अपने बेटी की भी अगर शादी करने जाओ तो फिर मुस्तफा के फरमान के मुताबिक करना, हुस्न बात में देखना, अमीरी बात में देखना, खानदान बात में देखना। आका ने एक गरीब अली के साथ अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा का निकाह करके दुनिया वाले को पैगाम दिया था। लोगों
लोगों ने पूछा था, या रसूल अल्लाह आपने अपने बेटी का निकाह गरीब अली के साथ क्यों किया था? बड़े बड़े करोड़पति आए थे आपके बेटी के लिए, बड़े बड़े दौलतमंद आए थे आपकी बेटी फातिमा के लिए, हाँ बड़े बड़े वक्त के अंबानी आए थे आपकी बेटी फातिमा के लिए, लेकिन आपने सबसे गरीब अली का इंतखाब क्यों किया है? कमजोर अली के साथ आपने शादी क्यों किया है? अली के घरों की हालात ये थी, कई दिन तक अली के घरों में चूल्हे नहीं जलते थे। तब मुस्तफा ने कहा था, ऐ लोगों तुम लोग सिर्फ ये जमाना देख रहे हो, वक्त देख रहे हो, लेकिन मैं आने वाले वक्त को देख रहा हूँ। आने वाले वक्त में मेरे उम्मती में कुछ गरीब बेटियां भी होगी, कुछ गरीब बाप भी होंगे। हाँ, गरीब बेटियों के शादी में लोग मुश्किल करेंगे, किसी गरीबों तक रिश्ता लेकर के कोई नहीं आएगा, गरीब बेटियों से कोई शादी करना नहीं चाहेगा। मुस्तफा ने आने वाली उम्मती को देख रहा था और तमाम लोगों से कहा था, ऐ लोगों, अरे सारी दुनिया तो अपने फायदे के लिए निकाह करती है, लेकिन मैं आने वाले अपने गरीब उम्मतियों के लिए अपनी प्यारी बेटी, लाडली बेटी फातिमा का निकाह गरीब अली के साथ तय इसलिए किया ताकि आने वाली मेरी कौम के गरीब बेटियों को अपनी गरीबी पे अफसोस ना हो, अपने बाप के गुर्बत पे कभी रोना ना आए। हाँ, अपने बाप की गुर्बत की वजह से कभी गरीब बेटियां जान ना दे, अपने बाप की गुर्बत की वजह से गरीब बेटियां घर छोड़ करके ना चली जाए, अपनी बाप की गुर्बत की वजह से गरीब बेटियां खैरों के साथ ना चली जाए। मुस्तफा ने कहा था गरीब अली से निकाह करके, इसलिए मैंने पैगाम दिया ताकि जब अमीर बेटियों को उसके बाप के अमीरी पे नाज होने लग जाए तो मेरे कौम के गरीब बेटियों को मुस्तफा की सुन्नत पे नाज होने लग जाए। मुस्तफा ने कहा कि मैंने गरीब अली के साथ निकाह करके इसलिए मैंने दुनिया वाले को पैगाम दिया कि अगर अमीर बेटियों को उसके बाप की अमीरी पे नाज होने लग जाए तो मेरे कौम में कुछ गरीब बेटियां भी होंगी। मुस्तफा साहिब देख रहे हैं अपने जाती फायदे के लिए निकाह नहीं फरमाया है, गरीब अली के साथ करके इसलिए पैगाम दिया ताकि गरीब की बेटियां ना रोएगी। अगर आज हम गरीब बेटियों को रुलाएंगे ना, याद कर ले, जो रहमत होती है हमें जन्नत दिलाएगी ना, वो जहन्नम भी दिला देगी। मैदान हश्र में वही बेटियां खड़े होकर के अर्ज करेगी, मौला तेरा फैसला कब होगा, तेरा इंसाफ कब होगा? ये बेटियां रब की बारगाह में शिकायत कर देगी, अल्लाह तूने तो अमीरों को माल देकर के उसको मालदार बना दिया था, लेकिन अल्लाह मेरे बाप को तूने माल नहीं दिया था, मेरे बाप की गुर्बत की वजह से लोग हमारी शादियों में मुश्किल कर रहे थे, अल्लाह मेरे बाप की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता था। अल्लाह ये बता अगर मेरे बाप के पास माल ना था तो इस बेटी का क्या कसूर था? अल्लाह ये बता अगर मेरे बाप के पास जमीन ना थी तो इस बेटी का क्या कसूर था? अल्लाह मैदान हश्र में आपको पकड़ेगा। मैं नहीं जानता कितने आपकी नमाजें आपको जन्नत में ले जाएगी, कितने रोजे आपको जन्नत में ले जाएंगे, कितने हज आपको जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन बेटियां अगर मैदान हश्र में खड़ा हो जाएगी तो फिर रब की बारगाह में अर्ज करेगी, अल्लाह मेरा फैसला होना चाहिए। तब अल्लाह का फैसला होगा, ए फरिश्तों इसे घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते भी कहेंगे, अल्लाह ये तो अपने वक्त का नमाजी था, अपने वक्त का हाजी था, हाँ ये अपने वक्त का परहेजगार था, ये तेरी इबादत गुजार था। अल्लाह कहेगा आज कुछ ना देखना, इसलिए कि मेरे कौम के गरीबों पे इसने जुल्म करके आया है, मेरे कौम के गरीबों को सताता रहा, ये मेरे बंदों पे जुल्म करके आया है। ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाओ, इसलिए कि जो मेरे बंदे का वफादार नहीं हो सकता है, अल्लाह आज उसका वफादार नहीं हो सकता है। हाँ, आप रब की पकड़ से नहीं बच पाएंगे, तो फिर कोशिश करें कि हमारी शादी मजहब इस्लाम के मुताबिक हो, हम निकाह को आसान कर दे। शादी करें यार, मेरे आका ने किस तरीके से शादियां की थी, कभी ये शरीक कर ले, कभी देखे बुजुर्गाने दीन ने किस तरीके से शादियां की थी। मुस्तफा इतने आसानी के साथ शादी कराते थे ना। एक साहबी रसूल आ गए थे आका की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह मैं जवान हो गया हूँ। आका ने फरमाया जब जवान हो गया तो शादी कर ले, इसलिए कि 3 चीज में जल्दी किया जाता है। 1 नंबर अगर आजान हो जाए तो जल्दी से नमाज के लिए जाए। दूसरे नंबर आका फरमाते हैं अगर किसी की मैयत हो जाए तो जल्दी से कब्रिस्तान के हवाले कर दिया जाए, ताखिर न किया जाए। फरमाते हैं तीसरे नंबर अगर औलादे जवान हो जाए तो जल्दी से निकाह करा दिया जाए, जल्दी से शादी करा दिया जाए। मेरी बात इसी पे चल रही है, इसलिए कि जल्दी शादी कराएंगे ना, अगर जल्दी से आप औलादों की निकाह नहीं कर रहे हैं तो जितने वो औलादों से बुराइयां हो जाएंगी ना, तो उन बुराइयों में माँ बाप भी आधे का शरीक होंगे, आधे का हकदार होंगे। लेकिन हमने शादियों को लेट किया है इसलिए ताकि मेरा बेटा अच्छा पैसा कमाने लग जाए, थोड़ी सी और ज्यादा जिंदगी हो जाए। हाँ, कोई माल के रिश्ता ढूंढते ढूंढते, मालदार ढूंढते ढूंढते, अपने बराबरी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते ताखिर कर रहा है। हम साहिब निकाहों में ताखिर कर रहे हैं। एक सहाबी आए थे आका की बारगाह में, कहा या रसूलल्लाह मेरे आका ने फरमाया मेरे दीवाने शादी क्यों नहीं कर लेता है, जवान हो गया है। वो सहाबी कहने लगे या रसूलल्लाह मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे अपनी लड़की कौन देगा, मुझे
अपनी बेटी कौन देगा? मैं गरीब मजदूरी करने वाला आदमी या रसूल अल्लाह, मैं तो मजदूर हूँ और जब मजदूरी करता हूँ तब मुझे खाने को एक वक्त मिलता है, मुझे अपनी बेटी कौन देगा? आका ने फरमाया क्यों टेंशन लेता है, ये मोहम्मद की चौखट है, यहाँ लोग आते हैं रोते हुए वापस जाते हैं मुस्कुराते हुए। काम मेरे आका ने ऐसा करो मैं तुम्हारा निकाह कराऊंगा और सबसे खूबसूरत लड़की से तुम्हारा निकाह कराऊंगा, हाँ, और मदीने के सबसे मालदार लड़की से तुम्हारा निकाह कराऊंगा, क्यों टेंशन लेता है? आका देखिए कितनी आसानी से निकाह फरमा रहे हैं। कहा ऐसा करो जाओ तुम्हारे पास अगर कोई चांदी की अंगूठी है ना फिर वही लेकर के आजा, मैं तेरी शादी करा दे रहा हूँ। साहबी रसूल कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं तो कमजोर आदमी गरीब आदमी, मेरे पास चांदी की अंगूठी तो नहीं है। कहा फिर ऐसा करो अगर चांदी की अंगूठी तुम्हारे पास नहीं है तो लोहे की अंगूठी लेकर के आ जा, तुम लोहे की भी अंगूठी लेकर के आ जा। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास लोहे भी नहीं मिल सकती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस एक बदन पे जो कपड़ा है ना ये गर्द आलूदा लिबास है। कहा मुस्तफा ने ऐसा करो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ये बताओ तुम्हें कुरान पढ़ने आता है या नहीं आता है? कुरान पढ़ने आज देखे मुआशरे में आज रिसर्च कर ले, जो हमारे साइज के बच्चे हैं जो जवान हैं, जो जिसे मैं अपना भाई मानता हूँ, साहिब मैं जवानों से बात करता हूँ अपना भाई समझ करके, और मैं बुजुर्गों से बात करता हूँ अपना चचा समझ करके, है ना? तो जो हमारे साइज के बच्चे वो कितना कुरान पढ़ना जानते हैं? अगर जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार नहीं होंगे, बताइए कि वो आपकी बेटी को कैसे जिंदगी भर निभाएंगे? आज हम माल देख करके किसी भी जवान के हवाले अपनी बेटी को कर देते हैं। आज अगर लड़का 90,000 कमा रहा है ना तो बाप खुश हो जाता है, चलो भाई मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस लड़के से मेरी लड़की की शादी करा दो। हमने माल तो देखा है, लड़के की आमदनी देखा है, लेकिन आप कभी उसके घर में जाकर के जायजा ले लेना। जो बाप अपने बेटे की शादी कराने के लिए मुआशरे में बोलता था मेरा बेटा 90,000 कमा रहा है, मेरा बेटा 60,000 कमा रहा है, शादी के बाद कभी जाकर के उसी बाप से पूछ लेना कि आप बताइए आपका बेटा कितना कमा रहा है, वही बाप कहेगा अब तो मेरा बेटा 5,000 रुपया भी मुझे नहीं दे रहा है। क्या बात है? शादी से पहले तो 90,000 कमाता था, जहेज लेने के लिए बाप ने अपने बेटे का बड़कपना बताया, उसकी आमदनी बताया, लेकिन शादी के बाद वही बाप फिक्र में आ जाता है क्या करूं, जो बेटा शादी से पहले 90,000 कमाता था अब शादी के बाद बाप को 5,000 रुपया भी नहीं दे रहा है। तो हमने सिर्फ माल देख करके जिस खूंटे भी चाहा हमने अपनी बेटियों को शादी करा दिया, जिस लड़के के साथ चाहा हमने शादी करा दिया। हमने ये नहीं देखा कि उस माल के पीछे कितना अय्याशी कर रहा है, उस माल के पीछे कितना शराब के अड्डों पर बैठने वाला है, हमने ये नहीं देखा कितना दीनदार है, दिन भर में कितने मर्तबा एक सफा कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, दिन भर में जिस मकसद से पैदा किया गया है उस मकसद में अपना आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिन भर में कभी अल्लाह के खातिर सजदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ, दिन भर में कभी अल्लाह और उसके रसूल को याद कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने सिर्फ माल देखा है और बेटियों को शादी कराने के लिए तैयार हो गया है। यही रीजन है कि आज कोर्ट कचहरियों का जायजा ले लीजिएगा, आज कचहरियों में जाकर के देख लीजिएगा कि जितने अमीर घराने की बहुएं कोर्ट कचहरियों में आपको नजर आएंगी, हाँ, सभी मालदार घरों की बहुएं आपको कोर्ट कचहरियों में नजर आएंगी, जिसका नतीजा ये मिलता है साहिब शादी के बाद। मैं कहना चाहूंगा हमने तो माल देखा है साहिब, अपनी बेटी का रिश्ता कराने के लिए तैयार हो गया। याद कर लेना, अगर आप चाहते हैं कि शादी के बाद जिस घर में मेरी बेटी जाए तो मेरी बेटी को इज्जत मिले, मेरी बेटी सुकून से रहे, तो कभी माल देख करके निकाह ना करना, इसलिए कि मुस्तफा ने कहा ये माल थोड़ी दिन में खत्म हो जाने वाली चीज है। सिर्फ हुस्ने जमाल देख करके निकाह ना करना, इसलिए कि हुस्न में ढलने वाली चीज है। सिर्फ आप खानदान देख करके निकाह ना कर लेना, इसलिए कि खानदान दागदार भी हो सकता है। मुस्तफा ने कहा था दीनदार देख करके निकाह करना। हाँ, दीनदार कैसे देखोगे? कभी जोहर में जाकर के देख लेना, कभी असर में देख लेना, कभी मगरिब में देख लेना, हाँ, कभी अल्लाह और उसके रसूल को याद करने वाला लौंडा देख लेना, फिर अपनी बेटी का रिश्ता करा देना। आका फरमाते हैं जब दीनदार बेटे से तुम शादी कराओगे तो याद कर लेना बेटियां दौलत से सुकून नहीं पाती है, बेटियां वहां सुकून पाती है जहां खुदा वाला भी लड़का होता है और मुस्तफा वाला भी हुआ करता है। वहां कराओ आप दीनदार लड़के से कराओ, इसलिए कि दीनदार लड़का जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार होगा ना, वो आपके बेटी को कभी तलाक का कागज दे करके नहीं वापस करेगा। वरना जानते हैं आज तो बाप धमकियां देता है, चलो भाई मालदार हूं मैं, बेटी को रुखसत कर रहा है ना तो पहले ही बता देता है बेटी डरने का नहीं, तुम फोन कर देना मैं फौरन आ जाऊंगा, ज्यादा दूर तो नहीं है, तुम फोन कर देना। यही रीजन है मालदारों से हमने रिश्ता करा दिया। अब वो मालदार अय्याशियों के चक्कर में आपकी बेटी की कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता। तलाक का कागज अगर आज लेकर के आपकी बेटी आ जाए ना तो फिर समझ लीजिएगा 10 बेटियों को एक बाप को पालने में बोझ महसूस नहीं होता है। अगर एक बेटी तलाक का कागज लेकर के आ जाएगी ना, जितना बोझ एक बाप को महसूस होता है।
10 बेटियों को पाल लेगा, बाप को मुश्किलें महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर एक तलाक का कागज लेकर के बेटी आ जाएगी ना, बाप जिंदगी भर मुस्कुरा नहीं पाएगा, बाप जिंदगी भर सर उठा करके नहीं चल सकेगा। हाँ, तो फिर आप कोशिश करें, लड़का आप देखें तो दीनदार ढूंढ करके अपनी बेटी का रिश्ता कराए, ताकि कम खिलाए, मजदूरी करके आपकी बेटियों को इज्जत के साथ रखे। हाँ, अली है साहिब, एक कमजोर अली है, मेरे आका ने सबसे हसीन बेटी, जन्नती औरतों के सरदार को फातिमा कहा जाता है कोई दुनिया में फातिमा की तरह लड़की तो ला करके दिखाए, फातिमा से ज्यादा शान वाली कोई लड़की है तो ला करके दिखाए, अली से ज्यादा कोई हुस्न वाला लड़का हो तो आप ला करके दिखाए। हाँ, लेकिन अली भी कमजोर है, वो फातिमा जन्नती औरतों के सरदार है। आज मैं कहना चाहूंगा, साहिब सरदार और उसके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। साहिब मैं कहना चाहूंगा, जब ऐसे बेटी को मुस्तफा ने गरीब अली के साथ करके दुनिया वाले को पैगाम दिया था और कहा था, लोगों अगर आप कामयाबी चाहते हो तो मुस्तफा की तरह आप निकाह कर दो, निकाह तुम्हारा बाद में खत्म होगा, उससे पहले अल्लाह की तरफ से बरकतें नाजिल हो जाएगी। हाँ, तो फिर आप कोशिश करें, मेरे पास वक्त कम नहीं है, मैंने 10-15 मिनट का वादा लिया था, रब की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़ब्बे व अतूबु अलैहि। रही जीवन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए।